Okay, Jan. So, yeah, let's explore about the life actually. So basically, like, though we discussed about trading psychology, but when I talk about psychology, there is no difference between trading or like whatever you're doing something else in your life, right? Right. Psychology is a wholesome game inside our mind or like inside us that takes care of all the behavior, all the actions in our life, right? सो जब हम लाइफ के बारे में बात करते हैं तो दीज आर द 9 areas ऑफ लाइफ in a broad way, but we can like minimize that also. But again, like I kept it in a broader view of the life, ताकि हम Right. लोग ईच एंड एवरी एरिया को अंडरस्टैंडिंग थोड़ा हम लोग के पास रहेगा और हम लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आई Right. मीन दिस वर्ड दिस एरियाज ऑफ लाइफ इटसेल्फ इज एक्सप्लान सेल्फ एक्सप्लानेटरी, लाइक इट कैन एक्सप्लेन itself what exactly these areas. So if I say like health is one, I mean that's a like very important part of our life. Wealth, of course, wealth is also there. Relationship with family, with your partner, with your business, with your career, so those things also there. Then your like mindset, how, I mean each and every areas, how your mindset or like how you're accepting the things and how we are like behaving the things, that mindset itself is a very important factor in our life. Then emotions, emotion, without emotion human is not human, right? So emotion is a very like important part of our life also. Purpose of life. So maybe in during the like childhood or like when we are young, we don't know about the purpose. Whatever the automatically लाइफ में जो हो रहा है उसी को हम लोग आगे लेके जाते हैं, राइट? थोड़ा बहुत फैमिली का इन्फ्लुएंस रहता है, सोशल इन्फ्लुएंस रहता है, बट आफ्टर सर्टन टाइम हम लोग को पर्पस के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग और वट एवर यू आर सीइंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक आम का पेड़ है, उसका पर्पज है उसको आम ही देना है, राइट? If it is a like river, the purpose is to stream the water across country, across the areas, right? So each and every जो जितना भी सारे चीजें रहता है ना, सबका एक पर्पस रहता है। बट ह्यूमन बीइंग एक बहुत टाइम तक वो एक पर्पसलेस होके चलता है, देन उसका पर्पस पता चलता है, बहुत लेट में पता चलता है, बट पता चलता है कि पर्पस क्या है। आई मीन एक टाइम आएगा जब पता चलेगा कि मेरा क्या, मैं जो कर रहा हूँ यही मेरा पर्पस है या यही मैं करना चाहता हूँ, सो दैट काइंड ऑफ पर्पस विल कम। पैशन, ये तो पता चल जाता है, बहुत जल्दी पता चल जाता है, छोटे छोटे बच्चों में भी पैशन आ जाता है, राइट? पैशन तो सबको ही फॉलो करते हैं, और पैशन के बारे में ऑटोमेटिकली एक इंटरनल एक फ्लो रहता है, एक फोर्स रहता है, वो पैशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। एक्चुअली आपका पैशन क्या है, आई मीन हाउ यू वांट टू फोकस दोज एरियाज, ऑटोमेटिकली आ जाता है। And contribution, yes, of course, because we are social animal, we have some duty, some kind of like responsibility to contribute to the society, to the mankind, to the universe. We should have some contribution. So this is also another aspect of life, and the spirituality. So spirituality is a like very broader topic. Sometimes people are talking about spirituality means like it a religion, caste kind of thing, but it's not like that one. Actually, broader way में देखा जाए तो spirituality is not about caste or religion. It's kind of like when you're talking about caste, religion, those are like groupism kind of. It's not spirituality. तो बहुत सारे हैं जो कि दे डोंट बिलीव ऑन गॉड और लाइक जो भी है उसको दे डोंट बिलीव देम, दे बिलीव देमसेल्फ। Okay, so atheists, they also believe themselves. They believe on like their higher source. I mean, अपना जो है हायर सेल्फ को बिलीव करते हैं, रेदर लाइक बिलीविंग ऑन एनीथिंग एज ए गॉड और लाइक एनी, आई मीन एनी मूर्ति है कुछ है उसको ना करके, दे ऑल्सो बिलीव ऑन देमसेल्व्स एक्चुअली। सो काइंड ऑफ दैट, सो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट like a caste or religion. I mean, we are not going to talk on that. Okay, but so these are the life areas, right? So if I ask you to choose one of them, so which is important for you? I mean, though it's personal, but I'll tell you like the next step, like what is the next thing that can happen in your life actually.
So which one is important for you? Each and every things are important. Like, let me just clarify. I mean, I'm not going to judge you why you are choosing that one, because each and every area is important. And I mean, there is something else in my mind. I can tell you after that. So which area is important for you? Well, currently, I mean, it is definitely wealth right now, Wealth, yeah, of current course. phase of life Because that I'm in. yeah, of course, wealth is a very important factor in our life, and the purpose of this conversation, ये जो भी हम लोग start किए ना, ये एक wealth related ही है, because we are talking about psychology of money and like trading psychology, those things we are talking about. So wealth is very important factor actually. And yes, I really appreciate that you have a clear vision, that clear things in your mind. Okay, wealth is my priority thing. So I'll tell you one thing about, a small story. I think yesterday मैं बोल रहा था कि I will tell you a story actually. Right. So एक बार क्या हुआ, एक इंसान के घर के आगे ना तीन आदमी आके खड़ा रहे वहां पे, ठीक है ना। अब मे बी यू माइट हैव हर्ड दैट दैट स्टोरी। सो ये जो है लोग है ना, ये अतिथि सेवा करता है, मतलब सबको घर में बुलाता है, कुछ खाने पीने का देता है, तो ये हमेशा करता रहता है, ठीक है। तो वो जब बाहर गया, देखा कि तीन आदमी है वहां पे खड़े हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप अंदर आइए, मैं आपको कुछ सेवा कर सकता हूँ, कुछ आपको मैं खाना पीना दे सकता हूँ, आप अंदर आइए। तो उनमें से बोले कि हम तीनों अलग अलग है, और हम तीनों एक ही साथ अंदर नहीं जा सकते। हम तीनों कौन है? एक है आपका जो वेल्थ, नॉट नॉट वेल्थ एक्चुअली, लाइक एक है लव, आई मीन जो लव है, लव एक है लव, सेकंड है वेल्थ, और थर्ड है सक्सेस, ठीक है। सो उन्होंने पूछा कि ठीक है, आप आपने घर में जाके बात कीजिए, और आप किसको अंदर बुलाना चाहते हैं, मुझे फाइनली बता दीजिए एक्चुअली। सो उन्होंने अंदर गए, जाने के बाद अपना वाइफ से बात किए कि ऐसा ऐसा है, क्या करेंगे। तो उन्होंने बहुत डिस्कस किए, डिस्कस करने के बाद अंदर गए और जाके बोले कि हम लोग के लिए वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग के लिए सक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेल्थ है तो हम लोग सब कुछ ले सकते हैं, सक्सेस है तो हम लोग वेल्थ भी ले सकते हैं, और बट हम लोग लव को लेना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ में जो अल्टीमेट जो हम लोग को मिलना चाहिए ना, वो लव है एक्चुअली। आई मीन सक्सेस में वेल्थ आएगा, वेल्थ डायरेक्टली आएगा, लेकिन अल्टीमेटली वेल्थ लेके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पीस ऑफ माइंड या लव, वो सब हम लोग पाना चाहते हैं, राइट। सो हम लोग को लव ही चाहिए, आप लव ही आ जाइए अंदर। तो जब वो लव का हाथ लेकर अंदर गए, तो अंदर पीछे पीछे सक्सेस एंड वेल्थ भी चलने लगे। तो बोले कि आपने बोले थे कि एक ही आएंगे, आप तीनों क्यों आ रहे हैं? नहीं, अगर आप वेल्थ चूज करते तो वेल्थ ही जाता, अगर आप सक्सेस चूज करते हैं तो सक्सेस ही जाता, बिकॉज आप लव चूज कर रहे हो। सो ये दोनों अपने आप उसका अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये था स्टोरी। तो आई मीन आप ये मत सोचिए कि वेल्थ आपने चूज किया था और मैंने बोला कि वेल्थ, लव यहाँ पे बहुत सारे हैं, बट ये चीज ऐसा है, ये जो 9 एस्पेक्ट्स आप देख रहे हैं ना लाइफ में, अगर देखा जाए तो ऑन रियलिटी, आप अगर इसी में से किसी को भी चूज करेंगे ना, ये जो बाकी 8 का जो 8 8 है ना, वो अपने आप उसके साथ आ जाएंगे, क्योंकि ईच एंड एवरी एरिया आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। इसमें अगर आप वेल्थ देख रहे हैं ना, अगर आप आपके पास वेल्थ, एक सक्सेसफुल, एक मनी फ्रीडम है, कुछ है, देन यू कैन, लाइक फॉर एग्जांपल, आपका जो पैशन है आप उसको बढ़ा सकते हो, राइट। अगर आपको Right. हेल्थ में भी कुछ इशू है, उसमें भी आप चेंजेस ला सकते हो, राइट। Mm-hmm. रिलेशनशिप में भी बढ़ा सकते हो, आप बाकियों को मदद कर सकते हो, सोशल कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो, स्पिरिचुअलिटी मतलब जो भी है उसमें आप बढ़ावा कर सकते हो, मतलब आप कहीं पर टेम्पल्स हो रहा है, कहीं पर और कुछ बन रहा है, स्पिरिचुअल ओकेजन्स हो रहा है, आप वहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। ईच एंड एवरी लाइफ आपका ना वो सेट हो जाएगा एक्चुअली। अगर आप हेल्थ देख रहे हो, तो ये बाकी चीजें भी अपने आप आ जाए, अगर आप हेल्दी हो तो बाकी चीजें भी ऑटोमेटिकली आ सकता है। आप Mm-hmm. हेल्थ रिलेटेड आप एक्टिविटी कर सकते हो, आप सोशल सर्विस कर सकते हो, वैल्यू क्रिएशन कर सकते हो। सो ईच एंड एवरी एरिया ऑफ लाइफ आपका इंटरकनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि एक हो गया मतलब दूसरा नहीं होगा बोलते। सो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसको आपको
लेके चलना पड़ेगा साथ में एक्चुअली। ऑटोमेटिकली अगर आप एक एरिया में कंसंट्रेट करते हो, उसको आप उसमें आप अपने आप को एलिवेट करते हो, आप उसमें शिफ्टिंग करते हो, तो ऑटोमेटिकली बाकी लाइफ पे आपका लाइफ में आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। मैं आज आई एम नॉट गोइंग इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स एंड ऑल, टू थिंग्स आई एम ट्राइंग टू आई मीन कवर टुडे। एंड नेक्स्ट जो भी सेशन रहेगा उसमें हम लोग टॉपिक वाइज कुछ प्लान करेंगे, उसके हिसाब से हम जाएंगे एक्चुअली। बट जितना भी सेशंस रहेगा, एवरी सेशंस में हम लोग कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, मेडिटेशंस वगैरह कुछ करेंगे, ताकि वो आपको जो आपका एलिवेट करेगा, आई मीन योर हायर सेल्फ को एलिवेट करेगा, विल गो विद दैट वन। ओके। सो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सक्सेस, यहाँ पे सक्सेस बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब हम लोग कोई भी चीज को लेके जाते हैं, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे हम चीज ले लेते हैं ना, तो इसमें अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो इक्वेशन ऑफ सक्सेस क्या होता है कि एक विश, पहले आपको एक पास विश होना चाहिए कि आप क्या विश, आई मीन देयर शुड बी क्लियर विश, ओके मुझे ये, आई वांट दिस टू हैपन इन माय लाइफ। ओके। सो ये विश होने के बाद उसके प्रति आपका एक इंटेंट भी होना चाहिए। अगर आप विश कुछ ले लिए कि मुझे, मेरे पास कुछ एक हाई एंड व्हीकल होना चाहिए, एक कार होना चाहिए, आप ये विश है आपका, आई मीन यू आर जस्ट आई मीन ट्राइंग टू गेट इट, और लाइक यू कहीं ना कहीं माइंड में एक है। लेकिन आपके पास इंटेंशन नहीं है, मतलब कॉन्शियसली आप ये सोच रहे हैं बहुत एक्सपेंसिव है, ये हो सकता है मैं कर सकता हूँ या नहीं, तो ये बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सो ये जो है ना, दीज आर नॉट इंटेंट एक्चुअली, ये इंटेंट नहीं है, ये आपको ब्लॉकेज करेगा। लेकिन आपके पास विश है और इंटेंट है, क्लियर है, हाँ मुझे होगा, आई मीन आई कैन गेट दैट एक्चुअली। ओके। सो दैट इंटेंशन भी होना चाहिए, और इसके साथ में आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ओनली, अगर ये दोनों रहेगा तो, अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो नहीं होगा। क्योंकि जो भी हम लोग बोलते हैं कि जो हम लोग बोलते हैं कि अ, हम लोग जो विश फुलफिल होना जब हम बोलते हैं ना, वहां पे विश कोई मिराकल से अपने आप फुलफिल नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन जो बोलते हैं ना, मैनिफेस्टेशन इज ए कम्प्लीटली और लाइक आर्ट ऑफ आर्ट ऑफ लाइक द आर्ट ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और द आर्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बोलते हैं उसमें, जो भी हम लोग अगर उसमें क्या प्रैक्टिस करते हैं कभी कभी कि आइज क्लोज योर आइज एंड थिंक लाइक आप, आपको वो मिल गया, आप ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं है। क्योंकि ये को क्रिएशन रहता है, कोई भी आप मतलब आप इसको विश कर रहे हैं ना, सो देयर शुड बी को क्रिएशन, को क्रिएशन इन द सेंस यूनिवर्स आपको देने के लिए रेडी है, लेकिन आपको लेने के लिए भी रेडी होना चाहिए, आपको उतना इंटेंट उतना एक्शन आपके तरफ भी होना चाहिए एक्चुअली। दैट शुड बी को क्रिएशन। मतलब जैसे कि अभी हम लोग अभी ये सेशन स्टार्ट किए, राइट, आपके तरफ से कुछ इंटेंट आया और मेरे तरफ से भी इंटेंट आया, ताकि हम लोग इसको को क्रिएट कर पाए, राइट, हम इसको सक्सेसफुल कर पाए, आज का जो सेशन हम लोग सक्सेसफुल कर पाए। सिमिलरली कोई भी चीज सामने है, मतलब जैसे कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपका इंटेंट है, आपका वही से मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, आपका एक्शन भी है, लेकिन अगर मान लीजिए कि वहां से मार्केट आज बंद है, तो आप ट्रेडिंग कैसे करोगे, आप नहीं कर पाओगे ना। तो वहां से जिस दिन ट्रेडिंग है, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, जिस दिन ट्रेडिंग सेशन से आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो नहीं हो पाएगा। तो इस कंप्लीटली को क्रिएशन, क्योंकि एक एक जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस में कुछ मटेरियल्स रहता है, कुछ इंग्रेडिएंट्स रहता है, वो होना चाहिए, तब जाके वो सक्सेस हो पाएगा। तो सेम यहाँ पे सक्सेस जो है उसमें ये तीन इंग्रेडिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स रहता है, जो कि विश होना चाहिए, इंटेंट होना चाहिए, और एक्शंस भी उसका अंदर होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है। और जब हम एक्शंस के बारे में बोलते हैं, सो मैं एक स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, बाकी ये टॉपिक हम लोग कभी कभी एक्स्ट्रा भी डिस्कस करेंगे। इंटेंट में इंट्यूशन कैसा इन्वॉल्व करना है, क्योंकि इसमें इंटेंट के साथ और कुछ इंग्रेडिएंट भी है, विश के साथ भी कुछ इंग्रेडिएंट्स है। मैं यहाँ पे अभी एक्शंस का इंग्रेडिएंट जो है वो मैं बताना चाहता हूँ। बाकी विश एंड इंटेंशन का जो इंग्रेडिएंट है वो हम लोग बाद में कभी एक बात करेंगे एक्चुअली। आपका माइंड में ये कुछ क्वेश्चंस आ रहा है क्या, मतलब कि हम लोग तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोल रहे थे, बट ये क्या टॉपिक है, ये क्या है एक्चुअली, एनीथिंग? नहीं तो नहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि कुछ एनएलपी हम लोग बात कर रहे थे कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे, तो ये क्या टॉपिक है एक्चुअली, आर यू सरप्राइज?
No, not particularly. मतलब I was ओके, open to ठीक है। मैं ये टॉपिक क्यों मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैं ये चैप्टर के बाद मैं आपको बताऊंगा क्यों, व्हाई आई चूज दिस टॉपिक्स, ये सब टॉपिक्स क्यों हम बात कर रहे हैं बोल के। तो यहाँ पे जब एक्शन का बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 80% इनर गेम है और 20% स्ट्रेटेजी है एक्चुअली। तो जब हम लोग 80% इनर गेम बोल रहे हैं ना, ये हम लोग का अंदर का जो बिलीफ सिस्टम्स रहता है, जो हम लोग जब बन के अभी तक आए हैं ना, वो बहुत ही गाइड करता है एक्चुअली हम लोग को डिसीजन लेने में, जो भी एक्शंस लेने में एक्चुअली। और 20% स्ट्रेटेजी, ये तो कोई भी हम लोग ट्रेडिंग में भी बोलते हैं। आई मीन इट्स नॉट अबाउट ट्रेडिंग एंड ऑल, लाइफ में कोई भी चीज आप वट एवर यू वांट टू अचीव ना, इसमें 80% इनर गेम रहता है, जो कि उसको मॉडिफाई करना, उसको शिफ्टिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एक्चुअली। ठीक है। और 20% स्ट्रैटेजी, मतलब आप जो करना चाहते हो, स्ट्रैटेजी प्लानिंग हो गया, उसको आउटसोर्स करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, जो भी आपको जो करना है, वो बाकी 20% रहता है एक्चुअली। ठीक है। सो बाकी लोग क्या करते हैं ना, ये जो रिजल्ट्स, मतलब जो आउटकम को लाने के लिए ना, दे पुट देयर इंटर एफर्ट्स। ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी को वो लोग 80% बना देते हैं और इनर गेम को 20% कर देते हैं वो लोग, मतलब स्ट्रैटेजी में ज्यादा ध्यान देते हैं, उसको फोर्सफुली उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करते हैं, तो उसी में लगे रहते हैं एक्चुअली। बट अंदर में जो है ना, उसको वो मॉडिफाई नहीं करते हैं। अगर आप मतलब एक एक जमीन में कुछ आप मतलब आप एक कुछ गन्ना लगाना चाहते हो या कॉर्न लगाना चाहते हो, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है? तो जमीन को पहले फर्टाइल करना पड़ता है, राइट? अंटिल अनलेस दिस right. जमीन, आई मीन वो जमीन फर्टाइल नहीं होगा, तब नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग बहुत अच्छा से सीड्स लाएंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ पानी देंगे, सब कुछ करेंगे, मतलब इसमें हम लोग 80% करेंगे और जमीन को फर्टाइल नहीं करेंगे, तो नहीं हो पाएगा ना। तो ये हो गया आपका, जमीन जो है ना, उसको फर्टाइल करना पड़ेगा, 80% फर्टाइल करना पड़ेगा उसको। ठीक है। तो ये जो सक्सेस को मिलने के लिए हम लोग, जो भी हम लोग 80% में ज्यादा फोकस करेंगे, जो कि इनर कैम में फोकस करेंगे। और इनर कैम को फोकस करने के लिए जो होता है, उसमें क्या करेंगे ना, डेली 22% हम लोग का जो इनर सेल्फ है, वो इनर सेल्फ को हम लोग धीरे धीरे बूस्ट करेंगे एक्चुअली। क्योंकि इनर बिलीफ हर जगह पे आपको स्टॉप करता है एक्चुअली, ईच एंड एवरी स्टेप में आपको स्टॉप करता है इनर बिलीफ। आप मॉर्निंग में उठते हैं, आई मीन यू माइट हैव लाइक, आई मीन ऑब्जर्व दैट, लाइक फॉर एग्जांपल, आपके साथ में आपका अंदर दो आदमी रहता है, आप वो खुद रहते हो, और एक आपका पास में आपका साथ में और एक रहता है। एंड ऑलवेज ईच एंड एवरी टाइम यू आर टॉकिंग टू हिम एंड यू आर टेकिंग सम डिसीजन ऑन बेस्ड ऑफ दैट। उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ टॉक बोलते हैं, राइट? तो अपने पास में जो रहता है, आप मॉर्निंग में उठे, मॉर्निंग में उठने अलार्म दे दिया, नहीं तो मॉर्निंग में उठ गए, इमीडिएटली आपका सेकंड थॉट्स आ गया, अभी 5 मिनट सो जाता हूँ, हु इज दैट सेकंड थॉट? वो कौन है आपके साथ था? सो वो आपका अंदर ही Self. रहता है, राइट? सो सेल्फ टॉक है। आप अभी अभी क्लास ले रहे हो और कुछ आप मतलब आपका डिसीजन, जो आपका मतलब तो सबकॉन्शियस हो गया, जो भी आप जो भी है, मतलब सेकंड पर्सन जो है ना, ही इज ईच एंड एवरी सेंटेंस को वो जज कर रहा है। एंड जज करने के बाद फिर इसको आउटकम लेके अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको आपको दे रहा है एक्चुअली। सो डायरेक्टली एक फिल्टर लगा हुआ है, एक फिल्टर जैसा है एक्चुअली। तो फिल्टर डायरेक्टली जो है, वो फिल्टर जो भी हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो फिल्टर उसको फिल्ट्रेशन करेगा आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आपको ऑलरेडी ये कुछ कुछ चीजें पता है, आपका बिलीफ अच्छा है, तो वो अच्छा चीजें उसमें फिल्टर करके आपका अंदर वो डालेगा। अगर कहीं ना कहीं कहीं जब कुछ डाउट है कि ये क्या है क्या नहीं, तो उसके हिसाब से वो फिल्टर करेगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट, वो फिल्ट्रेशन होने के बाद जो भी आपका नेक्स्ट, जो भी फिल्ट्रेशन होने के बाद जो है चीजें है ना, वो आपके पास जाके पहुंच, आई मीन दैट विल गो टू योर इनसाइड यू एक्चुअली। तो हमेशा और एक आदमी रहता है, राइट? तो उस आदमी को हम लोग को बूस्ट करना पड़ेगा एवरीडे 2%। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, सेल्फ, आई मीन द सेल्फ, हायर हायर सेल्फ ऑफ यू एक्चुअली। तो उसका हम लोग थोड़ा थोड़ा उसको बूस्ट करना पड़ेगा, ताकि हम लोग जा सकते हैं। सर अभी ये जो मैं टॉपिक में लिया और इसको मैं बात क्यों किया, क्योंकि आज जो हम लोग जो सेशन स्टार्ट किए, इसमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या है? इंटेंशन, इंटेंट। ठीक है। तो इसको समझाने के लिए कि अगर हम लोग इसको, जो भी हम लोग ये जो सेशन स्टार्ट किए हैं हम लोग, 1 मंथ का जर्नी है, जो भी हम लोग करेंगे, इसको अगर सक्सेस करना है, तो इंटेंशन हम लोग को रहना पड़ेगा, 100% इंटेंशन रहना पड़ेगा। इंटेंट होना चाहिए, तो आपका पास भी होना चाहिए, मेरे पास भी होना चाहिए, ताकि हम लोग इस सेशन को सक्सेस कर सकते हैं। सो कीपिंग दैट इन माइंड, मैं सोचा कि नहीं, पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो
अगर वो क्लैरिटी मिल जाएगा हम लोग को, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं एक्चुअली, आगे का जो सेशन है हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आई मीन एनीथिंग यू वांट टू से फ्रॉम योर एंड, लाइक कभी कभी होता है कि हम सुनते हैं लेकिन अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाता है, बहुत सारी चीजें रहते हैं जो कि हम लोग बोल नहीं पाते हैं। बट इफ यू हैव एनीथिंग, मे बी 2-3 minutes विल टॉक, आफ्टर दैट आई विल गो टू मेडिटेशन काइंड ऑफ थिंग एक्चुअली। नहीं, आई मीन इन ये जो 9 एरियाज है लाइफ के, वो तो मतलब मेरे को एक रफ आइडिया था ही कि सब इंटरकनेक्ट होते हैं। राइट बट वही है कि मतलब वो पाथवे क्या है टू गेट इट ऑल कनेक्टेड, राइट उस राइट। पे कभी सोचा नहीं था। तो ये पढ़ के अच्छा लगा, लाइक वील बी वर्किंग ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स एग्जैक्टली आल्सो। एग्जैक्टली, क्योंकि ये सब रिलेटेड एंड है। हम लोग अगर बात करेंगे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जब हम लोग उस टॉपिक में आएंगे तब हम लोग देखेंगे कि हाउ, क्योंकि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मतलब क्या है, एक न्यूरल को, जो आपके पास ऑलरेडी जो न्यूरल हुआ, न्यूरल नेटवर्क जो है उसको रीप्रोग्रामिंग करना, कुछ एक लैंग्वेज देके, वो जो इस लैंग्वेज में समझते हैं उसी लैंग्वेज को देके हम लोग उसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आई मीन देखा जाए तो वही है एक्चुअली, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले वो कौन सा लैंग्वेज है, क्या है, वो थोड़ा बहुत हम लोग को समझना चाहिए, राइट। सो ये है। अभी हम लोग ना एक मेडिटेशन करेंगे, जो कि ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। और ये ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन हम लोग सेल्फ ग्रैटिट्यूड करेंगे पहले। सेल्फ ग्रैटिट्यूड इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए, एक चीज है जो कि आपको यहाँ तक जो लेके आया ना, मैं एक बार आपको बोला था शायद, वो सेम एटीट्यूड, सेम सेम चीज आपको आगे भी आगे लेके नहीं जा सकता है, राइट। आपको उसमें हायर सेल्फ, हायर उसमें जो एलिवेशन आपको चाहिए, राइट। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो गलत करके आए हैं, जो भी हम लोग मिस्टेक्स किए हैं, उसको हम लोग लाइफ में उसको एक ग्रैटिट्यूड के साथ उसको थैंक्स भी करना चाहिए, क्योंकि हम गलती भी किए हैं और सक्सेस भी हुए हैं एक्चुअली, राइट। तो एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, एक सेल्फ ग्रैटिट्यूड के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ एज पर द प्रैक्टिस के हिसाब से जो टेक्निकल, जो आर्किटेक्चरल मेडिटेशन है, वो आर्किटेक्चरल मेडिटेशन में जाएंगे एक्चुअली हम लोग, ठीक है। सो इसमें 2 स्टेज, 3 स्टेज रहेगा। एक रहेगा मतलब जो आपको, जो लाइफ में इवेंट हुआ है, कुछ पास्ट में हुआ है, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। सेकंड क्या है कि आपका वर्क लाइफ में, आपका वर्क लाइफ मतलब यानी तो आपका बिजनेस लाइफ, जो भी आप, यानी तो ट्रेडिंग लाइफ में आप जो भी आप सक्सेस मिला है आपको, उसको आप ग्रेटिट्यूड करेंगे। और सेकंड क्या होगा, आपको जो रिसेंट मतलब आपको जो जो लाइफ में आप अभी तक जो बन के आए हैं, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड रहेगा एक्चुअली, ठीक है। 3 ग्रेटिट्यूड रहेगा। और इसके बाद में हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो ये क्लोज आइज मेडिटेशंस रहेगा, तो यू हैव टू क्लोज योर आइज एंड देन विल स्टार्ट। Close your eyes, deeply inhale, inhale from your nostril and exhale from your mouth. Inhale from your nostril, exhale from your mouth. Now imagine you are in a center of the circle. You are standing there. Just around you there is a big circle. You are standing there. Now think about a life event recently happened, maybe within last month, last year, or few days, few months, few years before. Imagine that. Think about that. Feel the emotion. It's a very beautiful moment in your life. Whatever moment is coming, don't judge it. Your subconscious know that one, which event is happens, and you are thankful for that. Feel the emotion. Feel the people around you. Say thanks to you. Say thanks to all the people around you for experiencing such kind of life event, beautiful moment in your life.
Now imagine there is another circle, which is a concentric circle, another big circle around that circle, and you are still here in the center. Now imagine slowly, the peoples are around, appearing inside that one. Your father, your mother, they are in their beautiful dress, beautiful wearing. Now say thanks to them. Now imagine all your family members also appearing in the circle, all your friends, family members, whoever helping you or you are helping them. So thanks to everyone. Convey your gratitude to them. It's a very good moment to say gratitude because their contribution in your life is very much important. Now slowly imagine other people appear in this circle who are also helping you, knowingly or unknowingly. Maybe जो लोग रास्ते बना रहे हैं, आपके लिए व्हीकल बनाए, आपके लिए मोबाइल बनाए, आपका लाइफ को इजी बनाए, से थैंक्स टू देम. Now imagine another circle, big circle is there. In that circle, the peoples are there, whoever gave you knowledge, like Gautam Buddha or anyone, whoever, also any psychologist, any spiritual person, whoever giving you knowledge, any philosophers, whoever are there, say thanks to them, show your gratitude to them. Also say gratitude to your ancestor. If you know them, if you have seen them, thanks to your ancestor, say gratitude to them, because they are the person who is carrying you so far in this world, in this earth. Because of them, you are still here on the earth. Now imagine that all the persons, all over them, whoever there, their blessings you, along with all the other sources, the sun, the plant, the oxygen, the air you are breathing, breathe in, breathe out. Everyone is giving energy to you. Things like a light of golden ball or a golden ray is coming from them, is coming to you as a blessings. And you are feeling that blessings. That blessings is coming to your head, forehead, and is going deep down to your spinals. It's going to the earth. And that blessing is creating a bubble around you. It's kind of a bubble, light ball, very big one. It's like a balloon. It's creating a very big one. It's energy that is coming to you. And that's the blessings from them. Again, say thank you to them. Say thank you for all your support. Now say my name is, you tell your name and say that one, my name is this and my life is a blessings. My life is a blessings. My life is a blessings. Now next step, we'll go another steps.
Again, deeply inhale and exhale from your mouth. Now imagine or visualize the success moment in your life. Maybe it's about your job, maybe it's about any business, or maybe it's about your trading. A successful moment in your life. Feel the emotion. How was the emotion? Carry it with you, that emotion. Feel how you are sitting in that position. When you are success, when you have got a very beautiful moment, how you are sitting, how you are breathing, how you are talking. Feel each and every moment. Now say thanks to yourself for that moment, for that success. Say thanks to yourself. Now imagine another next day. Now imagine that what you are expecting once you get success, once you get uplift your life, how you are looking, how you are talking, what is your dress, which dress you are wearing, how you are walking. The people around you, they are wishing you for your success. That's your higher self. Now say thanks to your previous, like your current state, and embrace the new self. Now you are just think like the new self is coming inside you. You are merging in that. You are merging in that. The new higher self is merging inside you. The new higher self is merging inside you. Now imagine how you are feeling now. Keep that feeling with you. How is your emotion? Keep that higher self, that image with you. That is your new identity. Now we are going to breathe like that. We are going to talk like that. We are going to wish people like that. You will be thankful to people. Show your gratitude to people. Now on the count of 1 to 5, will come down, will come out of that. 1, 2, 3, slowly come out. 4, 5. Now slowly open your eyes, rub your hand, put in your eyes. Hi, how was that? How was your experience? Nice, quite pleasant. Okay. Yeah, I think you are in deep into that. I am really like happy that you successfully completed the sessions. Earlier, you might have done that earlier. Like, for example, this is also kind of a meditation because people say meditation is kind of like sitting and like breathing, breath out, all those things. But these are called architectural meditations where like actively we participate instead of like the thoughts, outside thoughts come to us. We take control of the thoughts
and we channelize the thoughts into beautiful moments and all. Okay, so a lot of architectural meditations are there where the mind will also participate in the thought, that meditation actually. So this kind of meditations are there. We'll go deep into that one step by step. uh, I personally practice every day morning, like 5 o'clock. I wake up and practice all these things, even meditations, like gratitude meditations, self-love. A lot of things are there actually. Even like the grace, I mean, I try to keep the things short, but there will be like 20 minutes minimum with each and every section will go. So I do around 1 hour of meditations every day minimum. And people says like couple of, for example, Joe Dispenza says, if you are free, then they 10 minutes of, or 15 minutes of meditation. If you are really busy, you have very long schedule, do 1 hour of meditations. Okay, so meditation is a very important part, and I'll tell you next sometime like about how the meditations impact in our body and how the hormonal changes happen in our body, in our blood and all. So those things we'll talk sometime. So yeah, thank you for attending the sessions and actively participating. Say thanks to yourself also, because you spend 40 minutes for yourself, uh, getting away from your mobile, from your gadgets and all. So that's very important for your self improvement. And you gave that, like you participated that also. So say thanks to you, appreciate yourself, and blessings from the universe. So we'll see in the next session. We'll meet in the next session sometime. Okay. Okay. Okay, I'll just stop recording also.